operating system. Your topic is, as you can see on the blackboard, your chapter 2 operating system, and your topic is window operating system and switching on the computer. मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आज आपका टॉपिक है और कैसे कंप्यूटर को स्विच ऑन करना है ये भी हम आज डिस्कस करेंगे. सो वी विल डिस्कस टुडे two topics, that is window operating system and switching on a computer. On page number 18 and 19. So what is window operating system? Window operating system क्या है? The window operating system has a GUI. GUI means graphical user interface. This is the full form of GUI, graphical user interface. It means that in window we can use different programs simply by clicking on the pictures called icon. Yesterday we had studied graphical user interface. हमने कल graphical user interface के बारे में पढ़ा था कि किसी भी विंडो के ऊपर जब कोई आइकॉन पे हम क्लिक करते हैं तो हम कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं बाय क्लिकिंग ऑन अ पर्टिकुलर आइकॉन ऑन द डिस्प्ले विंडो. इसे ही कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि यूजर इंटरफेस का मेन काम क्या होता है? विद इंटरैक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस. ठीक है, मैंने ये भी कल आपको बताया था कि यूजर इंटरफेस टू टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस. द फर्स्ट टाइप इज कमांड लाइन इंटरफेस एंड पॉइंट नंबर 2 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. GUI, in a short way, GUI, you can say GUI, graphical user interface. This is the short form of graphical user interface. So, the window operating system has a GUI. मतलब window operating system के पास graphical user interface होता है, and it means in the window you can use different program simply by clicking on a particular icon which you want to use. Window is a very useful, friendly software. Window operating system is developed by Microsoft and which is the world leading software company. मैं आपको बताऊंगी Microsoft कंपनी ने ही विंडो को बनाया है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है. और Microsoft कंपनी जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, वर्ल्ड लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसको बिल गेट्स और पॉल एलन ने 4 अप्रैल 1975 को स्टैब्लिश किया था. माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन इन 1975 एंड 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन. Okay, the first version of Microsoft Windows 1.0 was released in 1985. जो पहला विंडो का Microsoft Windows का 1.0 वर्जन आया था वो 1985 में, मतलब आफ्टर फाउंडिंग द कंपनी, आफ्टर फाउंडिंग द Microsoft company, after 10 years they released first माइक्रोसॉफ्ट विंडो 1.0. ठीक है, मतलब 1985 को उन्होंने 10 साल के बाद, उनके फाउंडिंग के 10 साल के बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडो 1.0 1985 में रिलीज किया. अचीविंग little popularity, Windows 7 is the most popular operating system for desktop and laptop computers. I told you yesterday, मैंने आपको yesterday को बोला था कि I am already using Windows 7. Windows 7 is the perfect operating system for desktop and laptop. I am using laptop right now. मैं लैपटॉप यूज करती हूँ और उसमें Windows 7 को ही मैंने इंस्टॉल कराया हुआ है for better performing, for better experience. ठीक है, so again I am repeating. A window operating system has a GUI, means graphical user interface होता है, and you can perform any task with the help of by simply clicking on the particular icon which is very important for you, and
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यू कैन नॉट क्लिक ऑन द पर्टिकुलर आइकॉन, ठीक है। वो पर्टिकुलर आइकॉन जो आपको दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल यूजर आइकॉन की इंटरफेस की वजह से दिखता है। क्यों? क्योंकि यूजर इंटरफेस इज अ विजुअल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। क्यों? कंप्यूटर सिस्टम का वो एक विजुअल पार्ट है जो दिखाई देने वाला पार्ट है, ठीक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट इज द फर्स्ट world leading company, software company, okay, and Microsoft was founded by Bill Gates and Paul Allen on 4th April 1975, and the first version of Microsoft Windows 1.0 was released on 1985. All right, and Windows 7 is the most popular operating system I am already using. Alright, now the point number 2, that is switching on a computer. कंप्यूटर को स्विच ऑन कैसे किया जाता है? इट इज वेरी सिंपल टू स्विच ऑन द कंप्यूटर केयरफुली एंड प्रॉपरली. फॉलोइंग आर द बेसिक स्टेप्स. सो let's pick the point number 2, that is switching on a computer, and step 1, switch on the main power supply. As you can see on the book, this is switch on the power supply. This is switch on the power supply. मतलब आपको अपने कंप्यूटर के प्लग को, जो यूपीएस प्लग होगा, उसको आपको ऐसे करके सॉकेट के अंदर सेट देना होगा और क्या करना होगा, साथ में स्विच को ऑन करना होगा, ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1, we have to go step 2, and that is switch on the UPS of the computer. The UPS supply power to the computer in case of power cut. Power cut, main important point. Power cut, जब आपके घर में लाइट कट हो जाती है तो आई थिंक आपके घर में इन्वर्टर या जनरेटर तो होता ही होगा, ठीक है. आजकल हर घरों में इन्वर्टर जनरेटर कॉमन सी बात है. तो अगर इन्वर्टर आपके यहाँ है तो यूपीएस आपके यहाँ भी लगा होगा. मीन्स जो इन्वर्टर का ऊपर वाला बॉक्स होता है दैट इज कॉल्ड यूपीएस, ठीक है. तो इसी तरह से जैसे ही आपके घर में पावर सप्लाई कट होती है वैसे ही आपका यूपीएस बॉक्स मतलब आपका इन्वर्टर बॉक्स इमीडिएट ऑन हो जाता है और वापस से आपको लाइट की सप्लाई देने लगता है, जो कि दिन भर चार्ज होता रहता है आपके लाइट से, ठीक है. सिमिलरली व्हेन स्विच ऑन द यूपीएस ऑफ द कंप्यूटर, ये जो यूपीएस का जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, यूपीएस जो कंप्यूटर सिस्टम में होता है, इसकी मदद से आप जैसे ही if you are doing something very important on the computer, अगर आप कंप्यूटर पे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और सडनली पावर कट हो जाता है तो ये यूपीएस सिस्टम आपको बहुत देर तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता रहता है, जिससे कि कंप्यूटर अपना काम करता रहे, ठीक है. तो सबसे पहला स्टेप क्या था, जस्ट पुट द प्लग ऑन द सॉकेट एंड switch on the power supply, means switch on the main power supply. Then step 2, switch on the UPS of the computer. The UPS supply power to the computer in case of a power cut. मतलब power cut होने पे UPS आपको वो सप्लाई देगा. Step 3, press the power button of the CPU to switch it on. उसके बाद आपको ये करना है स्टेप 3 में कि यहाँ पे जो पावर बटन होता है, CPU का पावर बटन, CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल्स ऑल द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. CPU कंट्रोल ऑल द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है, CPU के बटन को क्लिक करना है. CPU के बटन को क्लिक करना है मीन्स आपको CPU को पावर सप्लाई देने के लिए, कंप्यूटर को रेडी करने के लिए स्विच ऑन करना है, ठीक है. नाउ स्टेप नंबर 4, स्विच ऑन द मॉनिटर. उसके बाद आपको मॉनिटर को स्विच ऑन करना है. उसके बाद क्या करना है, आपको लास्ट में मॉनिटर को स्विच ऑन करना है, ठीक है. जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे उसके बाद मॉनिटर, ये TFT मॉनिटर है, दिस इज कॉल्ड TFT LCD मॉनिटर. इसके इस तरफ राइट साइड में एक बटन आपको मिलेगा अंदर की तरफ. अगर आपके घर कंप्यूटर है तो आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सर्च ऑन गूगल. आप देख सकते हैं कि LFT मॉनिटर या LCD मॉनिटर या TFT मॉनिटर के यहाँ पर एक तरह का बटन होता है जिसको आप ऑन करेंगे तो आपके मॉनिटर के ऊपर
विंडो लिखकर आएगा, जो भी विंडो आप यूज करते हैं। सो स्टेप 1, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई। स्टेप 2, switch on the UPS of the computer in case of power cut. Step 3, press the power button on the CPU to switch it on the computer. And step 4, that is switch on the monitor. जैसे ही आप मॉनिटर को ऑन करेंगे तुरंत उस पे विंडो लिख के आएगा और एक प्यारा सा छोटा सा साउंड भी आएगा। ठीक है, तो आज आप इसको ट्राई कर सकती हैं घर पे कि कैसे हाउ टू स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर। ऑलराइट, सो रीड पेज नंबर 18 and 19, and if you have any doubt regarding page number 18, 19, use 2 topic, window operating system and switching on a computer, then please contact me. I will solve your problem. Class 3rd. Okay, good day. Have a good day. Thank you very much.